Early morning, students. Now today we are going to start exercise 1.4. Okay, so before starting exercise 1.4, you should know one definition, which is terminating decimal expansion. Actually this you have studied in 9th standard. Let us revise. If an expansion terminate after some division, that means remainder become 0, then it is called terminating decimal expansion. Let us take example like 1/2. This 1/2 have terminating decimal expansion. देखो, see always numerator written inside and denominator outside. So 1 will be smaller than 2. I must have to write 0. So 0.25 are 10. We are getting remainder 0. So 0.5 is terminating decimal expansion. क्यों? रिमाइंडर 0 आ गया. सेम वे 1/8 की बात करें अगर हम, तो 1 inside, numerator inside, denominator outside. Okay, so if I write 0, 0.8 1s are 8, 2 0 8 2s are 16, 8 5s are 14. Again we are getting remainder 0. That means 0.125 is terminating decimal expansion. 1/50. Same way, 1 inside, 50 outside. If I write 0, then fourth is 0 point. But 10 will be smaller than 50. I must have to write one more 0. तो दो 0 एक साथ में लिखा. So we will have to write 0 in the answer. 52 is 100. Again we are getting remainder 0. So 0.02 is also terminating decimal expansion. Now let us take 1/6. See, 1 inside, 6 outside. 1 smaller than 6, I must have to write 0. 6 1s are 6, 4 0, 6 6 are 36, again 4 0, 6 6 are 36, 4 0, again 6 6 are 36. So I will not get remainder 0. So this 0.166, it is not, or it is non-terminating decimal expansion. Why non-terminating? Because we are not getting remainder 0. Actually इसको बोला जाएगा non-terminating repeating. What is it? Non-terminating repeating. Non-terminating क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है. Why repeating? Because see, 6 is repeating. Okay? See, 7 divided by 20. 7 inside, 20 outside. Okay? Write one more 0. 23 is 60. 25 is 100. Remainder 0. So 0.35 is called terminating decimal expansion. 3/14. 3 inside, 14 outside. देखो 14 2s are 28. 2 0, 14 1s are 14, 6 0, 14 4s are 56, 4 0, 14 2s are 28, 120, 14 8s are 112, 8 0, 14 5s are 70, 100, 14 7s are 98, 2 0. देखो ये 2 0 है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है. अगेन 14 1s are 14. सेम वे. आई थिंक डिवीजन मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग को ऑलरेडी आता है. तो मैं करते जा रहा हूँ. आई एम नॉट गेटिंग रिमाइंडर 0. हियर आल्सो आई एम गेटिंग 2. ओके, सो दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है. नो डाउट इज नॉट टर्मिनेटिंग, बट इट इज रिपीटिंग. देखो 1 4 2 8 5 7 हुआ, फिर यहाँ से वापस रिपीट हो रहा है 1 4 2 8 5 7, फिर वापस क्या आएगा 1 4 2 8 5 7. तो ये भी कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके, so here we have studied two things. Terminating decimal expansion is that for which we are having remainder 0, and non-terminating repeating. Non-terminating repeating expansion is that for which we are not getting remainder 0, but digits are repeating. Okay, but listen, every time to find out whether it is terminating or non-terminating, it is not necessary to divide. हम एक चीज देखते हैं कि जिसमें रिमाइंडर 0 आता है उसमें कौन सी चीज कॉमन दिख रही है हमें. देखो here we are getting रिमाइंडर 0, तो इसका डिनोमिनेटर के फैक्टर में आपको क्या दिख रहा है 2. here also रिमाइंडर 0, डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2. रिमाइंडर 0, फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर 2 and 5 both. Okay, now remainder 0, factor of the denominator 2 and 5. तो what we can conclude कि जिसके
डिनोमिनेटर के फैक्टर में या तो सिर्फ 2 होता है या तो सिर्फ 5 होता है या तो 2 और 5 दोनों होता है, उसका डिवीजन करने पर आपको ऑलवेज रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, डिवीजन आपको करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज फर्स्ट कंक्लूजन, द प्राइम फैक्टर ऑफ TDE दैट मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हैव 2 or 5 or 2 and 5 both in the denominator. Okay, यहाँ ऐड करना रहेगा denominator of prime factor of terminate decimal expansion 2 और 5 और 2 and 5 both। ठीक है, अब 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आया, जैसे कि ये देख लो 2 के अलावा क्या है 3 आया ना नया, तो इसकी वजह से इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ पर 7 की वजह से रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो आपको क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन है वो TD है कि नहीं फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर के फैक्टर फाइंड कर डालो। अगर उसके अंदर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है फैक्टर में, तो दैट मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी उसका TDE हम फाइंड कर सकते हैं, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका फैक्टर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई भी आपको ऐसा कोई नंबर मिलता है, समझ जाने का रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। चलो कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे 3/25, तो 25 का फैक्टर फाइंड करो, 5 into 5, ठीक है, तो 5 आया। देखो अकेला 2 होगा तो भी डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, उसको टर्मिनेटिंग यानी TDE बोला जाएगा। अकेला 5 आएगा तो भी TDE बोला जाएगा, 2 और 5 दोनों है तो भी TDE बोला जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ अलग नंबर होना चाहिए नहीं। हियर इट हैविंग 5, सो इट विल हैव TDE, यानी 3 को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। सेम वे 5/35, नाउ टेल मी ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, किसकी वजह से 7 की वजह से, यानी इसका रिमाइंडर 0 आएगा नहीं। ओके, तो इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि डिनोमिनेटर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन है आइदर 2 और 5 और 2 and 5 both, and TD can be expressed in the form of 2 raised to m 5 raised to n. Okay, go through it. Healthy morning students, let us solve exercise 1.4. Okay, question 1 of exercise 1.4 is, without performing long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. You know very well कि terminating decimal fraction और terminating decimal expansion always have prime factor in the denominator either 2 or 5 or 2 and 5 both. That means it can be represented in the form of 2 raised to m 5 raised to n. It is very easy exercise. Before starting questions, let us take a view of one logic which we going to use in question first. Say, tell me 2 into 5 is what? 10. 2 raised to 2, 5 raised to 2 will be 100. 2 raised to 3, 5 raised to 3 will be 1000. 2 raised to 4, 5 raised to 4 will be 10,000. You might have idea about the sequence. That means whatever power of 2 and 5 is there, that much 0 will write after 1. जैसे यहाँ 2 और 5 के पावर 2 है तो 1 के पीछे 2 0 100 हो जाएगा, 3 पावर 1000, 4 पावर 10,000। यानी अगर ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन लॉजिक है, देखो 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, वैसे अब 2 क्यूब और 5 क्यूब फाइंड करके उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1000 ही मिलेगा। ठीक है, ये मैंने बताया कि राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 इक्वल होने चाहिए। ओके, ये लॉजिक है। इन शॉर्ट जितना पावर है उतने 0 लगा देने के।
Let us start first question, which is 13 upon 3, 1, 2, 5. Let us find out factors of 3, 1, 2, 5. Say 5, 6, 25 are 3, 1, 2, 5. 5, 125 are 5, 25 are 5, 5 are 5, 1. Check it out. How many 5s are there? 1, 2, 3, 4, 5. So it can be written as 13 by 5 raised to 5. Okay. So the question is what? कि find out whether they have terminating decimal expansion or not. हमें मालूम है terminating decimal expansion होने के लिए डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 होना चाहिए या तो 5 या तो दोनों. यहाँ पर 5 है तो मतलब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो सकता है. एक बात याद रखने की, डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी तीसरा नंबर मिला तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं होगा. अकेला 2 होगा तो हो जाएगा, अकेला 5 होगा तो भी हो जाएगा, दोनों है तो भी हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के कोई तीसरा नंबर होना चाहिए नहीं. See, one more thing we have written, it can be represented in the form of 2 raised to m 5 raised to n. So this can be written in the form of 2 raised to m 5 raised to n. देखो ये 5 raised to 5 हो गया और 2 है नहीं तो हम क्या लिखेंगे 0. ये लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है. So here we'll write it will have terminating decimal expansion. TDE that means terminating decimal expansion. अब आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो हमें उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना पड़ेगा. उसका मतलब क्या, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किसमें? डेसिमल में. हमें मालूम है कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में राउंड फिगर होनी चाहिए. तो एक सिंपल लॉजिक है, अगर डिनोमिनेटर में मुझे राउंड फिगर चाहिए तो मुझे इसमें से कुछ चाहिए, या डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों मुझे लाना पड़ेगा. अब देखो यहाँ 5 है तो हम 2 लाने का ट्राई करेंगे. एक बात याद रखने की, जितने डिनोमिनेटर 5 है उतने 2 लाओ, जितने 2 है उतने 5 लाओ. लाइक हाउ मेनी 5s आर देयर? 5. तो मुझे कितने 2 की जरूरत पड़ेगी? 5. तो विल मल्टीप्लाई विद 2 raised to 5 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब आप सोचोगे कि हमें जरूरत तो डिनोमिनेटर में थी तो न्यूमरेटर को क्यों मल्टीप्लाई किया? मैं इसका एक रूल है, कोई भी चीज अगर आप नंबर आप ऐड करते हो तो उसके अपोजिट प्रोसेस करके उसको बैलेंस करना पड़ता है. जैसे मैंने डिनोमिनेटर में 2 raised to 5 से मल्टीप्लाई किया तो अपोजिट मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए. लेट अस सॉल्व. 13 into 2 raised to 5, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 अपॉन 5 raised to 5 2 raised to 5. अभी मैंने जैसे समझाया, जितना 2 और 5 का पावर हो उतने 1 के पीछे 0. हियर पावर इज 5, हाउ मेनी zeros? 5. नाउ मल्टीप्लाई 13 with 32, it will be 416. So 416 upon how many zeros? 1 2 3 4 5. Let us put a point after 5 digit. अगर ये 5 0 है तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 पॉइंट. ठीक है. तो देखो पहले हमें ये बताना था कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा, यानी इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं. तो हमने पहले ये फाइंड किया कि उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा फैक्टर नहीं है, मतलब उसका टीडी है, और हमने ये फाइंड कर डाला. ओके. लेट अस सॉल्व सेकंड वन. सेकंड इज 17 by 8. Now factors of 8 we know very well. 17 upon 2 raised to 3. अगर मुझे 2 raised to m 5 raised to n में कन्वर्ट करना है तो 2 है मेरे पास, 5 नहीं है तो उसका पावर क्या होगा? 0. ओके. यानी अब मुझे बताओ इसका टीडी होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है. सो
it will have terminating decimal expansion। अब हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। एक ही रूल है डेसिमल में कन्वर्ट करने का, या तो टीडी फाइंड करने का। जितने 2 है उतने 5 लाओ, जितने 5 है उतने 2 लाओ। 2 और 5 दोनों होने चाहिए और वो भी इक्वल, तभी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास 5 नहीं लेकिन 2 है। कितनी टाइम है? 3 टाइम। तो मुझे 5 चाहिए, वो भी कितनी टाइम? 3 टाइम। तो व्हाट विल डू, with 5 raised to 3 will multiply in denominator as well as in numerator. So 17 into 5 cube 125 upon, now tell me after 1 how many zeros will be there? Power of both 2 and 5 is 3, there will be 3 zeros. Let us multiply 125 with 17, जो आपको अपने आप करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। It will be 2125 upon 1000. So after how many digits there will be points? 1, 2 and 3. Okay? यानी इसका टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन था, यानी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने कर दिया। ठीक है। थर्ड इज 64 अपॉन 455। 64 upon 455. Let us find out prime factor of 455. 5 9s are 45, 1s are 7, 13s are and 13 1s are. So it is 64 upon 5 into 7 into 13. अब मुझे बताओ इसका टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन होने के लिए डिनोमिनेटर फैक्टर या तो अकेला 2 अकेला 5 है, तो दोनों होने चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ फैक्टर में तो 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, यानी इसका हम टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका टीडी नहीं है, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग थे। देखो हमें मालूम है टर्मिनेटिंग होता है तो यहाँ डॉट डॉट नहीं आता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो डॉट 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 आता है। अब इसके डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा ये है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा नहीं। ये क्या होगा? इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यानी अगर मैं 64 को 455 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कभी रिमाइंडर 0 मिलेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जबकि मैं 17 को 8 से करूं तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, इसको इससे करो तो भी रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों टर्मिनेटिंग है। ओके, हमें नॉन टर्मिनेटिंग है तो आगे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, फोर्थ नंबर it is 15 by 1600। 15 by 1600। और आप सोचोगे इसको हमने ऐसे 2m 5n के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये फॉर्म में सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को ही लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं लिख सकते। लेट अस फाइंड आउट फैक्टर ऑफ 1600। 2 800, 2 400, 2 200, 2 100, 250, 2 25, 5 5 और 5 1। Check it out, how many 2s are there? 1 2 3 4 5 6। 15 upon 2 raised to 6 multiply how many time? 5, 2 time। ओके, अब मुझे बताओ इसका टीडी होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यानी अगर मैं 15 को 1600 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा 0। अब इसका टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांशन तो हमें फाइंड भी करना है। अब हमें इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है।
we know very well, if you want to convert any number into decimal fraction, then number of 2s and number of 5 should be same. पहली कंडीशन 2 और 5 दोनों होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेम. ठीक है. अब देखो यहाँ पर दोनों है लेकिन सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए क्या करने का, जो कम है उसको बढ़ाने का, क्योंकि जो ज्यादा है उसको कम नहीं कर सकते. तो मुझे बताओ 2 ज्यादा टाइम है कि 5 ज्यादा टाइम है. करेक्ट, 2 ज्यादा टाइम है, 6 टाइम. 5 सिर्फ 2 टाइम ही है, तो हम 5 को 6 टाइम बनाएंगे. तो अब मुझे बताओ आप लोग कि 5 2 टाइम है, उसको 6 टाइम बनाने के लिए कितने 5 कम पड़ रहे हैं, 4. तो विथ 5 raised to 4 will multiply in both numerator and denominator. So in numerator it will be 15 into 5 raised to 4, 625 upon 2 raised to 6 into, check it out, 5 raised to 2 and 5 raised to 4 will be how many, 5 raised to 6. Okay, now we'll multiply 625 with 15. आपको अपने अकॉर्डिंग करना. It will be 9375. Okay, 9375. Now tell me, here after 1 how many zeros will be there? Yes, 6, क्योंकि पावर 6 है. 1 2 3 4 5 6. Now after 6 digit point, 1 2 3 4 5 6 point and 0. So this is terminating decimal expansion of 15 upon 1600. Fifth number is 29 upon 343. See, if I factorize 343, it will be 7 cube. Okay. अब मुझे बताओ, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फाइंड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें तो 2 और 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो 7 है. तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं होगा. तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. सो इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग. देखो आपको दिख नहीं रहा है तो मैंने आपको बता दिया है क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. नॉन टर्मिनेटिंग शॉर्ट में लिखता हूं मैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके, गो थ्रू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, see, simple. Now tell me from the denominator, will it have terminating decimal expansion? No, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, यहाँ पर 7 भी है. So it will have non terminating repeating decimal expansion. It will have non terminating repeating decimal expansion. Okay, it will have non-terminating repeating decimal expansion. Next number is 7. The question is 6 by 15. 6 by 15. Okay, actually it is 7 number and here it is 8. See, before finding out factor you have to reduce if it is reducible. So it is reducible. Let us reduce. 3 2s are 3 5s are, so 2 by 5. अब हमें ये 15 नहीं चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है.
ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर वो होता है कि जिसको हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, आगे समझाया था। तो डिनोमिनेटर सिर्फ 5 आया, मतलब इसका TDE होगा इट विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। लेट अस फाइंड इट आउट। मैंने बताया था जितने 2s होते हैं उतने 5 होने चाहिए, जितने 5 होने चाहिए उतने 2 होने चाहिए। यहाँ 5 हमारे पास है, 2 नहीं है, तो 5 कितनी टाइम है? 1 टाइम। तो फिर हमें क्या चाहिए? 2, वो भी कितने टाइम? 1 टाइम। विल मल्टीप्लाई विथ 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 2s are 4, 5 2s are 10, so 0.4। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 6/15 बोलो या 2/5, दोनों का आंसर यही आएगा। नाउ नंबर 9, the question is 35/50, 35/50, okay? Now let us factorize 50. 2 25s are 5 5s are and 5 1s are 2 into, it will be 35 upon 2 into 5 raised to 2. Now tell me, will it have TDE? Yes. 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। Yes, it will have terminating decimal expansion. Let us find it out. 35/2 into 5 raised to 2. As I told you कि जितने 2s होते हैं उतने 5 होने चाहिए, और जितने 5 होते हैं उतने 2। यहाँ दोनों हैं तो देखना पड़ेगा कौन से ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है, 5 2 टाइम है, तो 2 भी 2 टाइम होने चाहिए, लेकिन 2 1 टाइम ही है। तो कितने टाइम 2 कम पड़ रहा है? 1 टाइम। तो 1 टाइम 2 विल मल्टीप्लाई इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 35 2s are 70. How many 2s now? 2. How many 5? 2. So now tell me 70 upon क्या आएगा? 2 और 5 2 2 टाइम है तो 100. So 0.70. This is terminating decimal expansion of 35/50. Next question is 77/210. 77/210. Factorize 210. 2 108 5s are 3 35s are 5 7s are 7 1s are. तो फैक्टर्स आर, देखो पहले मैंने आपको बताया था रिड्यूस करना पड़ेगा अगर होता है तो। इट इज रिड्यूसिबल। 7 1 7 11s are 7 30s are 30 हो गया, तो 30 के फाइंड करने पड़ेंगे। याद रखना रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करके देखने का, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 30 2 15 3 5 5 1 2 into 3 into 5. Now tell me, will it have terminating decimal expansion? No, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर और एक नंबर आ गया 3, so it will not have terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion नहीं है तो क्या होगा? Non terminating repeating. It will have non terminating repeating decimal expansion. Okay, so your question first is over. With question first we have completed question second also. देखो क्वेश्चन सेकंड में ये करना था हमें, क्वेश्चन फर्स्ट तो यहीं तक ही था, हमें टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग उतना ही बताना था, यानी हमें यहाँ तक ही बताना था, यहाँ तक ही। लेकिन जो क्वेश्चन सेकंड है इसी एक्सरसाइज का, उसमें आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ये फाइंड भी करना था, तो मैंने दोनों चीजें एक साथ में कर दी। ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ओवर। गो थ्रू इट।